Am I audible? Yes, sir. Okay. So today's, as per invitation letter, uh, my task of the day is to give my presentation speech on the point from subtopic 1 to 3.2. Okay. On the point of 3.3, our Chief Operating Officer shall give his presentation through show slide. Okay. Yes, before going to start this session, I am just begging pardon that yes, I do admit that my team are not yet fully equipped with the set of skills which are expected to have before proper and efficient utilization of the SLS 26.0 version. But I have been left with no option except to hope that they will rectify the mistakes committed on their behalf. Mistakes maybe might be in the form of non-compliance of the due date, inappropriate utilization of the digital assets. Digital asset in the sense कि we have sufficient content on our YouTube platform, but even due to reason unknown to me or my core team, if somebody has not gone through those digital assets and used to raise a question or used to ask a question regarding the execution or any technical issues, then it would create a kind of noise. And in this way, the golden rules we have obliged uh, to uh, to to follow with in the form of that heat control, noise control, and unit economics. These set of golden rules shall be left with the mercy of God only. So please, I would request to all of you that in the spare time, you have to go through the digital assets, physical assets, and human resource of the firm, and from there you may get sufficient information. And yes, along with learning from those sources, if you find any mistake there therein, then kindly suggest and communicate the same to our chief compliance officer. So these were a few mistakes which at the beginning of our corporate compliances may not be counted among highest level of omission, but later on this kind of mistake shall be considered highest level of mistakes. Just a minute. And I would be left with no option except to uh, uh, reprimand or rebook these kind of activities. Okay. So let us start today. First point is 1.1, that is factual aspects. And one thing more, uh, after this session, we have been left with only one session that is scheduled on 22nd of March of this financial year. We have only two sessions, and thereafter all the team members are expected and will be requested to to ensure their participation by way of using various tools of Zoho ecosystem. Zoho ecosystem. So from the in this way, from first session of next financial year, no person shall be allowed to give their presentation without using show or PowerPoint presentation or having supporting or corroborating literature. Otherwise,
it would be very hard to maintain the quality of presentation, and it would seems to be boring in the absence of literature relating therewith. Okay. So, as usual, first point, 1.1, that is factual aspects. As you know that the name of the training session is Corporate Compliances, ROC. ROC stands for Registrar of Company. And you will be amazed to know that through the journey, we have achieved various milestones, which you will get about it during the presentation of our operation chief under the topic 3.3. So I would not go there therein. Herein, I have been assigned to give a brief view what were the philosophical aspects, what were the need and requirements which motivated ourselves to upgrade our governance model, upgrade our structure of legal service delivery system. So I would share with you those emotional moments. You may say emotional moments are those requirements which arose on the picture, and in those time, although we were not having sufficient resources, but we have been managing all those pro and cons, and thus reached up to this level. Okay. So in the factual aspects, um, there are a lot of things to be which could be shared with all the viewers and participants, but it would not be very easy for myself to confine those content within such a short span of time. So I would not go otherwise. Only I would emphasize on certain activities which have been carried on uh, uh, in this particular financial year. So, on the point of factual aspects, once again, I would remind to all the participants that from the point of factual aspects, I have to share with you 3 points. First point, key, suppose actually I may use the word whiteboard, but instead of using the whiteboard, I am just begging. I'm just seeking your permission to uh, have my presentation in very what we say formal come informal mode, because we are approaching to the end of this particular financial year. So I would not prefer to use the word whiteboard. Just I'm using the marking at this. Okay, there might be issue. Here I can. Okay. Okay. I have to use the word tiles. Otherwise, it would be very difficult for me to manage it. Okay. Look at this factual aspect, the structure of the factual aspect. These presentation would be helpful at the stage of preparation of report based on this lecture. So structure of the report in the under the head 1.1. Okay. 1.1. Factual aspect that will include first स्ट्रक्चरल फैक्चुअल एस्पेक्ट. किसी भी कंपनी को आप ऐसे देखें कि कंपनी में होते कितने हैं. तो जो हमारी जर्नी रही है, हम लोग की जो जर्नी रही, उसमें हमने 3 साइड से देखा है कि एक तो होता है कि
हमारे हम 3 सेगमेंट होते हैं फर्म के। हम लोगों ने पहले के सेशंस में डिस्कस भी किया है रिसोर्स के लेवल पे। तो एक होता है कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स कैसे हैं, दूसरे हमारे जो बाकी के एसेट है फिजिकल कम डिजिटल वो कैसे हैं। तो फिजिकल कम डिजिटल हम दोनों इसमें रख दे रहे हैं। और तीसरा होता है कि हमारे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कैसे हमको परमिट करते हैं। तो जब एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं इस सेशन में। तो एक फैक्चुअल एस्पेक्ट में ये हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 31 अप्रैल 2025 से। तो उस स्टेज पे हमारे बैलेंस शीट्स, हमारे उससे पहले के पास्ट एक्सपीरियंसेस ह्यूमन रिसोर्स के लेवल पे कैसे थे, और हमारे उसमें फिजिकल एसेट्स या डिजिटल एसेट्स कैसे थे या उस समय। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए फिर हुआ कि अच्छा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में हम और बेहतर कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, तो बिजनेस को अपने और स्ट्रक्चरली इसको और अपग्रेड कैसे किया जाए, इस पे लगातार काम किया गया। और धीरे धीरे जो हमारे जो रेगुलेटिंग स्टैट्यूट्स है उसके प्रोविजंस को धीरे धीरे करके उसको सेंटर स्टेज पे लाने का प्रयास किया गया। इस पूरी जर्नी में आपने देखा होगा कि ह्यूमन रिसोर्स के लेवल पे अगर हम बात करें तो फैक्चुअल एस्पेक्ट में ह्यूमन रिसोर्स के लेवल पे तो एक जो पहले ओपन इकोसिस्टम था उसको एक सिंगल डोमेन या कस्टमाइज मेल पे लाया गया, और वहां पे सबको एक सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर और ये सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, ताकि अब उसके जरिए जो भी डेटा या जो भी कम्युनिकेशन या कोलेबरेशन सुनिश्चित हो, वो उसको उस डेटा को हम लोग ट्रैक कर पाए, मॉनिटर कर पाए, और उसके किसी भी इनएप्रोप्रिएट यूज को हम लोग सप्रेस कर पाए। तो और ये तो ठीक है, फिजिकल डेटा डिजिटल डेटा का अवेलेबिलिटी है, तो हमारे फैक्चुअल एस्पेक्ट के सेकंड वाले पॉइंट पे आएगा। फर्स्ट वाले पॉइंट पे यानी इसको हम ऐसे कहें कि इसको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर सही करें तो इसको नंबर सिस्टम 1.1.1 ये हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स के लेवल पे हमारे जो मैन पावर, जो कोर में मैन पावर जो हमारे 2 थे उसको हमने अपग्रेड करके 7 तक ले गए। तो और उनको तो एक तो ह्यूमन रिसोर्स के लेवल पे ये किया गया, दूसरा उनके एक डिपार्टमेंटलाइजेशन किया गया, तीसरा उनके डूज एंड डोंट्स पे काम किया गया, अभी उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम किया गया। तो इस तरीके से क्या है कि हमारे जो एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका जो स्पेन ऑफ कंट्रोल है उसको हम कैसे, या डिग्री ऑफ जो एक जो फ्रीडम है या जो लेवल ऑफ बेंचमार्क है, इसको हम कैसे डायनामिकली हम कैसे सिंक करें अपने डिलीवरी सिस्टम से, इस पे हम लोगों ने काम किया। और इसी एचआर इंडक्शन का ही या एचआर के एम्प्लॉयबिलिटी सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट को सुनिश्चित करने के लिए ही लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम के रूप में हम लोग मंथली अपने ट्रेनिंग सेशन आज भी होल्ड करते हैं। और अपने इन एचआर को असिस्ट करने के लिए हम लोगों ने अपने बाकी के जो यूट्यूब के डिजिटल एसेट्स है उसमें आईसी सीरीज जितनी है इंक्यूबेशन सेल, और उसको हमने रन किया है कि हमारे एचआर सेगमेंट के मैन पावर एचआर वहां पे जाके अपने किसी स्किल पे काम कर सकते हैं, और वहां पे कोई कंटेंट में कोई इनकंसिस्टेंसी है तो उसको भी बताएंगे, कहीं पिन पॉइंट कर लेंगे, उसको हम लोग अपग्रेड कर लेंगे। तो हमने देखा कि अपने एचआर को एक तरफ से हमने उनकी संख्या पे काम किया, दूसरा उनके उनको इंसेंटिवाइज कैसे करना है उस लेवल पे काम किया गया, और तीसरा उनके लर्निंग अपॉर्चुनिटी को और बेहतर कैसे किया जाए उस साइड से भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और इसमें एचआर के लेवल पे एक और काम किया गया है कि ये सब करने के बाद अब इन्होंने सीखा क्या, जाना क्या, इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे। तो इफ द पर्सन इज हैविंग एलिजिबिलिटी ऑफ right to practice, then he will get an opportunity to present his case before a judicial forum. But suppose in case a person who is undergoing through the internship program and is not having a right to practice, then how should he be secure to utilize the acquired skill? To mitigate this kind of hardship, your firm has provided all of those kind of human resource a kind of freedom to use their acquired skill through various platform like YouTube, LinkedIn, YouTube,
या ये रिपोर्ट जनरेट करना. बट अनफॉर्चुनेटली एंड इट्स वेरी वेरी discouraging approach of the persons. Unfortunately, the rate of compliance is not good in my view. Yes, sorry. Instead of using the word good, I would use the word is not satisfactory. Suppose there is a post of CPO, then it is his mandatory duty to generate the content, because the section of chief people officer is very dynamic department, and in this department you will get as enough opportunity, more than enough opportunity to interact with the resources. Resources may be consist of human resource, intellectual resource, and various operational nitty-gritty. So uh, from the side of HR department, I am still expecting next level of energy, and I am hopeful that yes, for the proper nourishment of our human resources, our chief people officer will pay attention to the expectation of your law firm. Okay, these were our point of presentation on the HR section, and from that and next point under topic 1.1.2, that is physical and digital assets. Then you are on this point, you are quite aware with the physical assets. Currently we are running SLH 04 branches, and it's a very good to share with you that recently one of our team members has shown his interest to make a contribution in the firm at the valuation of 1 crore. So it is a kind of response to the hard work which we have invested into. So currently, for the expansion of our physical assets and our digital assets, your firm is going to receive a contribution of 1 lakh uh, in in what we say, with respect to the enjoyment of right of equity partner of the 1%. Like, and it is not a very it is not a kind of information which used to be shared at this platform, but just I am sharing this with you. And this is information is, yes, there are various regulatory compliances which will have to be complied with in time, but just I am sharing all these encouraging statements with you that we are on the right path. So at the valuation of 1 CR, your firm has decided to again expand its physical presence through the SLH 03. That particular branch shall be fully dedicated to our technological to meet our technological aspiration. तो देखिए ये हमारे फिजिकल एंड डिजिटल एसेट्स के पॉइंट पे है. वैसे 1.1.3 पे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में, तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में आपका जो टॉपिक 2 है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो रिलेवेंट लेजिस्लेशन में ये जितने भी इसमें पॉइंट हैं उसमें आप पाएंगे कि तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब जो थे, जब हम स्टार्ट किए थे हम लोग अपने थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उस समय ये सब एक एक करके आए थे. तो फिलहाल में हम इसको यहाँ पे नहीं, 1.1.3 के तहत रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में हम बस ये कहें कि हमने शुरुआत किया था, जैसे हम लोग के पास एक थॉट होता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टीचिंग में होता है, वैसे ही आप बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है. बट नॉन बायोलॉजिकल ग्रोथ में एक थियरी ऑफ एक्रीशन होता है, एक्रीशन, ACCRETION.
तो एक्रीशन एक प्रोसेस है, थियरी नहीं बल्कि एक प्रोसेस है, उसके जरिए पार्टिकल 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 मिलके इसमें ग्रोथ होता है, तो इसका भी साइज बढ़ता है, और एक सेल होता है वो बढ़ता है। तो होता है कि ये दोनों में अंतर क्या है, ये नॉन लिविंग का ग्रोथ स्टाइल है और ये लिविंग बीइंग का ग्रोथ स्टाइल है। तो जो लिविंग बीइंग की ग्रोथ स्टाइल होती है उसमें क्या होता है, दो चीज होता है, ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट, इसमें दो चीजें होती है। और इसमें जो होता है इसमें सिर्फ एक्रीशन होता है। तो हमने अपने बिजनेस मॉडल को हमने लिविंग सेल जैसे किया कि इसमें एक तो उस सेल की साइज भी बढ़नी है, दूसरा उस सेल में डिफरेंशिएशंस बढ़ना है ताकि उसमें यूनिकनेस आए और वो एक स्पेशल सेक्शन को डेडिकेटेड हो। तो ये ऑर्गेनिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को इन द लाइट ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस पूरा करते हुए हम लोगों ने डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस साल बिल्डअप किया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयासरत है। कुछ डिपार्टमेंट हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट के लेवल पे भी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एंड आई एम एक्सट्रीमली होपफुल कि दैट वी विल मीट आवर टारगेट इन द टाइम। तो आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि इस तरीके के इनोवेटिव स्टेप इतने छोटे कालखंड में हम लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, इतने एक इफिशिएंट मैनर ऑफ यूटिलाइजिंग द आवर रिसोर्सेज। तो ये पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है, और डेफिनेटली योर मैनेजमेंट विल इंसेंटिवाइज दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओके, तो ये हमारा फैक्चुअल एस्पेक्ट्स के हो गए 3 पॉइंट। अब विजन में जैसे हम आते हैं, फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में हमने कहा कि फैक्चुअल एस्पेक्ट को हम 3 सेगमेंट में देखेंगे कि एचआर साइड से कि ह्यूमन रिसोर्स के लेवल पे हमारी क्या क्या जर्नी कैसे रही है। तो 1 से 2, 1 से 2, 2 से 7, ऐसे चले हम लोग 8 तक आए। अभी ये एक्सपैंड होगा, इसको फर्स्ट राउंड में हम 15 तक ले जाने की इच्छा रखते हैं, FY27 में हम इसको 15 तक ले जाने की इच्छा रखते हैं, और अप टू 15 जाने के बाद फिर डेटा को हम स्टेबल होने के लिए प्रयास करेंगे, देखें कैसे वो स्टेबल होता है। तो अब धीरे धीरे हम लोग करेंगे। और फिजिकल एंड डिजिटल रिसोर्सेज में जो हम लोगों ने काम किया है, तो हमने इसमें अपने SLH 26.0 को अडॉप्ट किया है, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ फैसिलिटीज उसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये फिजिकल डिजिटल में था, और रेगुलेटरी में हमने बोला कि इसमें प्रोप्राइटरशिप समय के साथ जैसे आगे बढ़ा उसमें ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसमें ये जो नीचे के हमारे एक्ट हैं ये सब भी इसमें रिलेवेंट है, भी आ जाएंगे। तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के कैसे जर्नी आगे बढ़ी हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारे पॉइंट थे, फर्स्ट पॉइंट थे इसमें फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में। अब आते हैं इसमें सेकेंड में, अगर हम आते हैं प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज टाइटल्ड एज 1.2, दैट इज विजन। तो विजन डॉक्यूमेंट में SLH मैनुअल अभी भी हम लोग के अंडर प्रिपरेशन या अंडर कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट है। तो जो हमारे सटन लॉ हाउस प्रेजेंटेशन जो आर्काइव सेक्शन है, वहां पे सटन लॉ हाउस मैनुअल जो मोर देन 250 पेज 250 पेज के एबव की है, उसमें आपको ये सारी चीजें इलेबरेटेड वे में मिलेगी। बट इस विजन को आप ऐसे रखें कि अगेन कि जिसे हम कहते हैं ABC होना चाहिए, एक्यूरेट, ब्रीफ एंड कंसाइज। किसी भी मैन पावर जो रिपोर्ट तैयार करते हैं उनको हम बोलते हैं। वैसे ही जो फॉर्म के लेवल पे एक विजन है वो ये है कि हमें अपने जो डिलीवरी मॉडल है उसको इस तरीके से एफिशिएंट करना है कि जैसे कि हम उसमें जैसे हम लोग अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमारी जो यूएसपी है, तो यूएसपी में आप पाएंगे ना कि स्पीड, ऑथेंटिसिटी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड प्रो बोनो फेस, ये हमारे विजन्स हैं। तो कहेंगे विजन्स, नंबर ऑफ विजन है, इसमें आप यूजर बिखराव तो नहीं आएगा, हमने कहा नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग गवर्नेंस को बहुत ही ज्यादा इम्फेसिस करते हैं। तो विजन हमारा ये है कि उसमें जैसे हम लोग के पास एक सेट ऑफ एक वो था कि हमारी इफिशियंसी अच्छी हो, हम कॉस्ट इफेक्टिव हो और अकाउंटेबल हो सोसाइटी के प्रति, सिस्टम ऑफ लॉ के प्रति, कंज्यूमर के प्रति और अपने खुद के प्रति। तो ये हमारे विजन है। इसको अचीव करने के लिए हम लोगों ने इनिशियल फेज पे 3 गोल्डन रूल्स फॉलो किए हैं, जिसमें नॉइस कंट्रोल, हीट कंट्रोल और यूनिट इकोनॉमिक्स। तो ये इस गोल्डन रूल्स के बेसिस पे हम अपने विजन को अचीव करने के लिए प्रयासरत हैं। इसमें ये सारे के सारे हमारे थॉट प्रोसेस, कंप्लायंसेस और एक जो गाइड, जो एक डायरेक्शनल अप्रोच है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है
और इस पे टाइम टू टाइम हम लोग इसको अपग्रेड करते जाएंगे। तो ये हमारे विजन के लेवल पे है। और अभी जो चीजें अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, डॉक्यूमेंट नहीं हुई या अभी वो पाइपलाइन में है, उसको भी हम लोग समय के साथ उसको भी इम्प्लीमेंट करने का एक के प्रति डेस्टाइंड है। तो कई सारे ऐसे पार्ट है विजन का ही, एक रिमोट फार स्ट्रेच इमेजिनेशन भी कह सकते हैं, जो अभी दो ऑल एक्चुअली व्हाट वी से, आई एम ट्राइंग टू से दैट कि ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द विजन्स has not have not yet been visible. Reason is that we are just giving our best to meet the requirement of time. In the process of this journey, yes, we are undergoing through various pro and cons, but the theory of compounding effect prove and give us hope that ki by way of adapting short, small and consistent process we would achieve our target. तो ये हमारे विजन में था। तो विजन में भी कई चीजें भी दिखेगी आपको, डॉक्यूमेंट हो जाएगा, प्रॉपर मैनर में दिखेगा। और लिस्ट ऑफ कंप्लायंसेस में है, लिस्ट ऑफ कंप्लायंसेस में आपको 3.3 में आरओसी एक्टिविटीज में आपको हमारे ऑपरेशनल चीफ की तरफ से लिस्ट ऑफ कंप्लायंसेस में कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए जाएंगे, जो अभी जिसमें आपको टाइम सेगमेंट, टाइम के साथ कैसे बिजनेस को हम लोगों ने बिल्डअप किया, उसको वहां पे आपको एक लिस्ट ऑफ कंप्लायंसेस मिल जाएगा। तो ये था हमारा 1.3 तक। आते हैं 2.1। अच्छा, इसमें एक चीज हम इन द मिड ऑफ द प्रेजेंटेशन हम बात करें तो इसमें जो 3.3 पे हमारे जो संडे सागा के प्रेजेंटर हैं, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, उनको 15 स्लाइड के 15 मिनट्स एटलीस्ट प्रोवाइड हो जाएंगे। तो हमको उससे पहले ही अपने प्रेजेंटेशन को सम अप करना पड़ेगा, इसलिए हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इससे विजन के बाद हमारे हैं 1.3 में लिस्ट ऑफ कंप्लायंसेस। तो लिस्ट ऑफ कंप्लायंसेस के लिए हमने कहा कि रीड विथ टॉपिक 3.3। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो है हमारा टॉपिक 2 है रिलेवेंट लेजिस्लेशन। इसमें आप देखेंगे रिलेवेंट लेजिस्लेशन में जो चीजें यहाँ पे those statutes or enactment which have found entry in this column, it is the list which is not exhaustive in nature. It is a kind of inclusive list. मीन्स देयर बाई कि और भी कई ऐसे एक्ट हैं जो रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड थे, हमारी जर्नी में हमको बहुत गाइड किए थे, काम आए थे, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने बिजनेस मॉडल को धीरे धीरे डिजाइन करना शुरू किया। जैसे अभी 2.1 में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अगर हमें देखने होते थे, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल की जर्नी हम लोगों ने इन सब एक्ट से या अचीव किया। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतने ही एक्ट थे, यानी और भी एक्ट थे जो जिनके अंदर इम्बेडेड जुडिशल जो 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 ज्यूरिस्टिक एस्पेक्ट्स था, ज्यूरिस्टिक व्यूज जो थे, फिलोसफी थी, वो वहां से हम लोग लर्न किए। ढेर सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी लर्न किए, ढेर सारे इकोनॉमिक्स, यूनिट इकोनॉमिक्स के एंगल से लर्न किए। तो और भी जगहों से सीखे गए, चर्न किए गए, उसको बिजनेस में अडॉप्ट किया गया। बट लीगल एस्पेक्ट्स में अगर हम बात करें तो हमारी ये दीज आर सर्टेन एक्ट, certain enactment which help us in designing and developing our supply our legal service delivery model. तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अब कहेंगे इसमें आपने क्या सीखा, तो आप ध्यान से देखिएगा, हम इन सब एक्ट के खाली प्रिंसिपल्स को ही आपके साथ शेयर करेंगे ताकि इसके डिटेलिंग में बहुत जाने की जरूरत न पड़े, बट आपको एक मोटी मोटा आइडिया मिल जाएगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने हमें कैसे हेल्प किया था। आप इसके प्रियम्बल को देखिएगा एक्ट में जाके, तो उसमें लिखता है कि वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट, जहां कहीं भी यह अति आवश्यक हो कि क्या, टू डिफाइन, मतलब आप किसी चीज को परिभाषित करना हो, टू डिफाइन, और क्या है, एंड अमेंड, यानी एक तो होता है, इसको हम ऐसे कहें कि जहां कहीं भी ये आवश्यक हो जाए, किसी डिफाइन एंड अमेंड, किसी चीज को परिभाषित करना एवं
उसको जो परिभाषित है उसमें अमेंड करना, और क्या इन ये किसको किस चीज को डिफाइन करना है या किस चीज को अमेंड करना है। सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ, सर्टेन पार्ट्स, कुछ भाग, किसके, पार्ट्स ऑफ द लॉ, और लॉ कैसा हो, लॉ हो हमारा रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। अब आप पाएंगे इसमें, देखिए ये एक्ट हम बात कर रहे हैं 1872, ये कैसे हमें हमें कैसे हेल्प किया था अपने बिजनेस को डिजाइन डेवलप करने में, ठीक है। तो उस पर बात कर रहे हैं। तो आप देखिए वो सारे लॉज जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, ऐसे लॉज के कुछ पार्ट को कैसे डिफाइन किया जाए और कैसे उसमें अगर अमेंडमेंट किया जाए, ये समझना हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आदमी पढ़ता है। तो इसको हम अपने साइड से देख ले, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है आपको इसी डिफिनेशन में मिलेगा। और भी प्रॉमिस, प्रॉमिसरी, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर, ट्रांसफरी, वेंडर, वेंडी, ढेर सारे वर्ड्स इसमें आएंगे जो कॉमर्शियली कोई भी दो व्यक्ति मिल के जहां पे जो कोई भी कार्य डिलीवर करते हैं, तो उसमें जितने भी नॉमेनक्लेचर थे वो हमने यहाँ से देख लिया। तो नॉमेनक्लेचर का डिफिनीशन हमको यहाँ से मिल गया, और उससे रिलेटेड लॉज भी हम यहाँ से जाने, और उस लॉज में कैसे अमेंडमेंट कैरी आउट किया जाता है, कैसे किया गया वो भी जाने। तो ये हमें अपने बिजनेस को डिजाइन डेवलप करने में काफी काम आया, ठीक है। ये बहुत छोटे में हमने बताया, बाकी अपने ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम में हम ऐसे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट का क्लास लेते ही हैं, आपकी फर्म लेती है अपने वो जो लैब सीरीज है। तो अगेन इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर वी वुड एग्जीक्यूट लेक्चर सीरीज ऑफ द 50 आवर्स ऑन सर्टेन बेसिक स्टैट्यूट्स। तो उस पे हम लोग फिर से करेंगे, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जिससे जो प्रिंसिपली या जो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट में हेल्प करते हैं, उस पर हमारी जो इंटर्नशिप विंग है थ्रू द कोऑर्डिनेटर, वो उस पर अपना लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के छोटा सा हमने बताया। वैसे इंडियन एविडेंस एक्ट ये हमको कैसे हेल्प किया था, तो आप एविडेंस एक्ट की जब बात करेंगे तो उसमें भी आप देखिएगा, उसके भी प्रीएम्बल को सिर्फ पकड़िए। कहेंगे प्रीएम्बल क्यों बता रहे हैं, प्रीएम्बल में ही पूरे एक्ट का एक तरीके से आउटलुक छिपा, वो आउटलुक होता है, वो बता देता है कि इस एक्ट में आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में कहा ना कि सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट के डिफिनीशन और अमेंडमेंट को जब कभी भी जानने की जरूरत होगी तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पास जाइए, वो आपको बहुत मदद करेगा। तो वो हमारे बिजनेस मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, या हमारे लीगल सर्विस की डिलीवरी, इंगेजमेंट, कन्वर्जन, डील, एग्जीक्यूशन, इस सब में काम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसलिए हमको यहाँ से बहुत हेल्प मिली थी, और ये हमारे नेक्स्ट फेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखेगा भी। अब आते हैं एविडेंस एक्ट, ये हमको कैसे हेल्प किया था। तो आप एविडेंस एक्ट के डिफिनेशन को देखेंगे, अगेन वही वर्ड है, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट। वो वर्ड उतने ही हर जगह आते हैं कि जहां कहीं भी इट इज एक्सपीडियंट, जहां कहीं भी ये चीजें जरूरी हो जाए, हो क्या। अब यहाँ पे टू के बाद ये क्या करता है, ये कंसोलिडेट, एक कंसोलिडेट मतलब एक जगह पे आप कंसोलिडेट करिए और क्या करिए, डिफाइन करिए। देखिए पिछले वाले में खाली डिफाइन था, अमेंड था, और इसमें कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। अच्छा क्या चीजें उसमें था, ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, ये था ना, सर्टेन पार्ट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट था। इसमें क्या है, इसमें ये तीन कामों को किया गया है। द लॉ, उसमें ऑफ लॉ था, देखिए इसमें था ना ऑफ लॉ, सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ, इसमें था क्या कि किसी कंसोलिडेट करिए, डिफाइन करिए, अमेंड करिए, किस चीज को, द लॉ, ऐसे कानून को जो कि द लॉ ऑफ एविडेंस, द लॉ ऑफ एविडेंस, यानी एविडेंस एक्ट। इसका यानी प्रीएम्बल कैसे चल रहा है उसको हम एक बार फिर से कोशिश करें कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के जरिए हमने अपनी जर्नी में क्या सीखा। तो इसमें जो लॉ ऑफ एविडेंस है, किसी डॉक्यूमेंट के में एम्बेडेड जो फैक्ट्स है, या डॉक्यूमेंट, व्हाट इज डॉक्यूमेंट्स, या एविडेंस से रिलेटेड जितने भी
हमारे नॉमेनक्लेचर है या उससे रिलेटेड लॉज है, उसको हमें जानने में मदद मिली थी इस एक्ट को पढ़ के, ताकि कल को, चूंकि कंपनी एक लीगल पर्सन होती है, वो पर्सन टू पर्सन रिलेशन स्टेब्लिश करती है, तो आगे गवर्नेंस में जो भी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे वहां पे उसके उस डॉक्यूमेंट का एक एक एविडेंसरी वैल्यू क्या होगा, इसको जानना समझना, प्रिंसिपल एजेंट्स के प्रिंसिपल्स ये हाँ हाँ जानना समझना ये बहुत ही काम का होता है। इसलिए इसको जानना, हम जानने अपनी जर्नी के क्रम में ये भी हमें एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किया था। यानी इसको हम अगर क्लोज करें यहाँ पे, तो लॉज ऑफ एविडेंस मतलब एविडेंस से रिलेटेड लॉ को एक जगह पे कंसोलिडेट किया गया है, उसको डिफाइन किया गया है, और उसमें जहां पे भी जरूरत पड़ी है उसको अमेंड किया गया है। इन सभी चीजों को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में किया गया है, और इस तरीके से उस एक्ट के पढ़ने से हमें भी जो लॉ ऑफ एविडेंस है, जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस में बड़े रोल प्ले करते हैं, उसको जानने का या उसके प्रिंसिपल्स को समझने में हेल्प किया था। और एक था यहाँ पे आईपीसी। आईपीसी को लेके हमारा ये कहना है कि ये मॉडर्न, हमने इसको गीता के तौर पे लिया था, मतलब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई मोरल स्पीच के बजाय अच्छा है कि हम आईपीसी पढ़ें। उसमें ऑल दोज एक्ट एंड ओमिशन हैव बीन अरेंज्ड एंड फाउंड प्लेस्ड इन देयर इन which create a kind of offense, and there the degree of the severity of the offense could be inferred out by way of looking at the quantum of punishment already mentioned therein। तो आईपीसी के जरिए हमें पता चला कि हमें क्या चीजें नहीं करनी है, जिसको बोलते हैं डेकोरम, एटिकेट्स, एथिक्स। ये तो आईपीसी यानी हमने कॉन्टेक्ट सिविल साइड से और आईपीसी और एविडेंस के वो प्रिंसिपल्स, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, हमने वहां से जानने का प्रयास किया था अपनी जर्नी में। हमारे वी इन द सेंस कि वी आर द पर्संस who directly or indirectly have contributed their effort into the foundation laying of your law firm। तो वैसे ही, और इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें तो ये तो हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के लिए। वैसे ही जो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स के लेवल पे हमने कुछ डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब ये सब प्रिंसिपल आप जान जाते हैं तो प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आता है कि अब इसको आप किस स्ट्रक्चर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप स्ट्रक्चर, ढेर सारे स्ट्रक्चर थे हमारे लीगल एरिना में। प्रोप्राइटरशिप पे जाए, पार्टनरशिप पे जाए, एलएलपी पे जाए, प्राइवेट लिमिटेड पे जाए, कॉर्पोरेट पे जाए, हम किस पे जाए, तो उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर के अलग अलग रेगुलेटरी नाम से उसके अपने फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स थे। तो उसमें हमने उस काफी हमको कंफ्यूजन में रखा वो। फिर धीरे धीरे वहां से जर्नी स्टार्ट किया, तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट्स, ये स्टेट लेवल पे होता है, इसके रूल्स होते हैं, तो इसके अपने प्रो एंड कॉन्स थे। वो कभी जो जर्नी में कभी जब हिस्ट्री ऑफ द फॉर्म्स को डिटेलिंग में जाएगा तब उसमें आएगा कि उस समय क्या क्या हुए थे, कैसे किस टर्मोइल कंडीशन से गुजरा गया था, वो भी हम शेयर करेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट्स में, वो आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम की क्राइसिस से चलते हम उसको नहीं कर पा रहे, बट रेस्ट एश्योर्ड all these facts and transactions shall be placed into the archives of the your law firm। तो ओके, तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के जरिए भी देखा गया कि विच वन मॉडल सूट्स आवर टारगेट, आवर विजन, आवर सूट or will assist us in efficient delivery of the purposes which I am aspiring to give to the for the welfare of the public। तो अपने पर्पजेज एक्चुअली को हम कैसे पब्लिक गुड्स में इन्वेस्ट करें या पब्लिक गुड्स को डिलीवर करें, बड़ी अच्छा वर्ड है, पर्पजेज वर्ड हमने यूज किया है, कि हमारे जो उद्देश्य है वो पब्लिक इंटरेस्ट में या हमारे कंज्यूमर को या सोसाइटी को हम कैसे सेटिस्फैक्ट्री मैनर में डिलीवर करें। तो एनीवे, तो ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट था। वैसे ही उसी जर्नी में एमएसएमई एक्ट है, ये हमारे लिए देखिए बड़ी खास एक्ट है, इसने हमको असिस्ट किया था, और वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन हमने यहाँ से किया था फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स में, और इसने हमको हमारे कुछ डेटा को स्ट्रक्चर करने में बहुत हेल्प किया था। बहुत ही रिसेंटली आया था, 15 में ये आया था अमेंड होके, और हमने 17 में अपने प्रोप्राइटरशिप के साइड से इस डॉक्यूमेंट में फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे, जिसमें हमारे सील, अकाउंट,
प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कई चीजें हमारी धीरे 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 विजुअल हो गई थी। तो ये यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, फिर 17 की बात है। उसके बाद जब इसको हम लोग इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को जब हम लोगों ने स्टैट्यूटरीली रिफ्लेक्ट करना शुरू किया, तो इनकम टैक्स एक्ट में 44 एडीए वगैरह में हम लोगों ने कई चीजें सीखा जाना, और करेंटली भी कर रहे हैं। आने वाले कल में ये जो एक्ट है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अपने नए वर्जन में। तो अभी हम लोग इस पे लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अपनी पूरी टीम का जो आईटीआर कंप्लायंस है, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि फर्म के लेवल पे हम कैसे उसको और सुनिश्चित करें, एक बोनाफाइड टैक्स पेयर के तौर पे हम पहचाने जाएं इन द कमिंग डेज। तो या टैक्स प्लानिंग कैसे करें, टैक्स दे देना ही बुद्धिमानी नहीं है, टैक्स प्लानिंग के स्कोप्स है, तो हम लोग उस पर काम करेंगे। अनावश्यक हम टैक्स क्यों दें किसी को? अगर टैक्स प्लानिंग से बचा सकते हैं तो इसको टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। हम टैक्स अवॉइडेंस की नहीं बात कर रहे हैं, टैक्स इवेजन की नहीं बात कर रहे हैं, हम टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आगे भी काम आएगी, बट एनीवे फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट में काम आए थे। लास्ट है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। अभी जो आपके स्ट्रक्चर आपकी फर्म काम कर रही है वो इस पे काम कर रही है। 2.3 में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे लगातार हम लोग अपडेट कर रहे हैं। इसमें हम लोग जैसे एसएलएच 26.0 वर्जन पे है। ये ओ वर्जन है, ये हमारे मंथ टू मंथ ये वेरी करता रहेगा। जैसे ये हाईली इंस्पायर्ड है आईओएस वर्जन से, इंस्पायर्ड है 26.1.3 या 3.1 चल रहा है अभी रिसेंटली उसका आया। तो हम लोग एक वर्ल्ड की फेम्ड कंपनी का जो वर्जन कैसे वो अपनी नंबरिंग करता है, वर्जन को टाइटलिंग कैसे करता है, उससे हम लोग हाईली इंस्पायर्ड हैं। और अपने बिजनेस को हम थोड़ा सा ऐसे करना चाहते हैं ताकि एक प्रोडक्ट इकोसिस्टम और बेहतर हम कर सके। तो ये हमारे ये जो वर्जन के पीछे का जो थॉट प्रोसेस है वो ये है। इसमें ये ईयर को रिप्रेजेंट करता है 26। अब पॉइंट के बाद जो ये आता है 0 वेरी फर्स्ट, इसमें पहला सीरीज तो 1 हो जाएगा, दूसरा 2, ऐसे करके हमारा जाएगा। ये जो वर्जन होगा इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं, इसमें सारे के सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं। आने वाले कल में इसका भी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा आप लोग को कि समय के साथ हमने अपने वर्जन को कैसे अपग्रेड किए हैं। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की पूरी एक जर्नी हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे। ये अभी उसके लिए हम लोग प्रयासरत है। तो अभी आते हैं, अभी कंपनी एक्ट्स की बात करें तो अब जैसे हमारे पास जितने भी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ओनर हैं, उन्हें पता है कि कंपनी एक्ट के दायरे में वो अभी भी आते हैं। और जो हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर है और हमारे मैनेजिंग पार्टनर है और हमारे जो बाकी इक्विटी पार्टनर है, अब वो धीरे धीरे देखिए एलएलपी एक्ट, चूंकि आपकी फर्म एलएलपी एक्ट से रजिस्टर्ड है, तो इसके जो स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल्स है उसको अब हम लोग धीरे धीरे अपने कंडक्ट में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग इसको कर लेंगे। यस, एक हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इज ऑलवेज लेस देन द कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस। इस मैक्सिम को ध्यान रखना है, ये भी एक गोल्डन रूल के इक्वल ही है कि किसी भी कानून के कंप्लायंस करने का जो कॉस्ट होता है वो हमेशा कम होता है उस कानून के न कंप्लायंस करने से। आप कहेंगे आप उल्टा बोल रहे हैं, बिल्कुल उल्टा नहीं बोल रहे। आप इस पे डिटेल्स में हम लोग छोटे छोटे सेशंस में डिस्कस करेंगे कि नॉन कंप्लायंस का जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो उसको जब आप जाते हैं सॉर्ट आउट करने, सेटल करने, तो उसका टोटल कॉस्ट जो है इन्वेस्टमेंट मनी, वो आपके कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस से भी ज्यादा बढ़ जाती है। मेंटल हीट, नॉइज और यूनिट इकोनॉमिक्स खराब करती है वो अलग से। तो इसलिए हमारा कहना है कि कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इज ऑलवेज लेस देन द कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो ये हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में था। और इन सब चीजों को, यानी अभी तक हमने जो देखा कि फैक्चुअल एस्पेक्ट्स, विजन्स, लिस्ट ऑफ कंप्लायंस में इसको हमने डिफर किया है, आगे मिलेगा आपको। फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हमारे कैसे कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त हुए थे, फाउंडेशनल। अच्छा, इसमें आईपीसी की जो हमने चर्चा की, आईपीसी हमें बताती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कभी इन केस कल को जाने अनजाने कोई मेलाफाइड इंटेंशन के साथ एक्टस रियस, एक होता है ना मेंसिरिया के साथ, कोई एक्टस रियस न करे, इसके लिए भी जानना जरूरी होता है। अब ये सब बीएनएस के रूप में आ गया है, नया एक्ट आ गया है, तो उस साइड से भी देख लेंगे, एविडेंस भी नया आ गया है। तो ये हमने फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट पे स्ट्रक्चरल पे हो गया। अब आते हैं इन सबको ध्यान में रखते हुए वेयर डू वी स्टैंड, कि इस समय हम कहाँ पे हैं। तो इस क्रम में देखेंगे, अब टॉपिक 3 पे हम आएंगे। तो वेयर डू स्टैंड में 3.1 में हम कहते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008। करेंटली हमारे जो एलएलपी मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं, और इस पे आने वाले कल में इस पे सभी के पास इसके प्रो एंड कॉन्स हम शेयर करेंगे। फिलहाल में इसमें जब कभी आप एलएलपी एक्ट खरीदेंगे तो एलएलपी एक्ट से
में एक्ट है, उसके रूल्स है, रूल्स 2009 है, ये एक्ट 2008 का है, इसमें रूल्स 2009 में आए हैं। इसमें वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशंस के रूल्स 2012 में आए थे। नोटिफिकेशंस इसमें 458 कंपनीज एक्ट के तहत जो डायरेक्टर वगैरह के उसके नोटिफिकेशंस आते हैं जो एलएलपी पे भी बाध्यकारी होते हैं। और ये एक तरीके का कंपनी और प्रोप्राइटर के बीच का एक मॉडल है जो हमें सर्टेन रिगरसनेस देता है, कंप्लायंसेस के लिए मोटिवेट करता है या बाउंड करता है, तो हमें एक तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। तो इसलिए हम लोग अभी इस फेज पे हम लोग अपने एलएलपी मॉडल को परस्यू कर रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमें रुक जाना है। If in the future all resources permit us, then I would like to upgrade our existing model of service delivery. That's why I am once again emphasizing that the structure of the, or we say the model of the business or the delivery mechanism depend on always depends on the visions एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यू आर एस्पायरिंग टू अचीव। तो मॉडल एक तरीके घर का नक्शा है, उसमें रहने वाले के ऊपर डिपेंड करता है घर का लुक कैसा होगा। तो इसलिए करेंटली हम लोग एलएलपी एक्ट को फॉलो करते हैं। तो उसमें आप जाएंगे तो इसमें अगर देखेंगे, हम एक ब्रीफ में बता दे रहे हैं, कहेंगे अच्छा ये क्या करता है, इसके भी प्रीएम्बल तो हम बता ही दें आपको कि ताकि अच्छा हम लोग इसमें क्यों गए। इसके प्रीएम्बल्स में आप देखेंगे कंपनी एक्ट काफी डिटेल है, उस पर भी हम आने वाले कल में हम लोग को ढेर सारा पढ़ना ही पड़ेगा कंपनी एक्ट पे। तो हम एलएलपी एक्ट पे थोड़ा सा बोल दे रहे हैं कि एन एक्ट टू मेक प्रोविजन, ये एक ऐसा एक्ट है एलएलपी एक्ट के बारे में, एलएलपी एक्ट 2008 के बारे में, जिससे हमारी फॉर्म गवर्न होती है। तो इट इज एन एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट है, एन एक्ट, जो टू मेक प्रोविजन, जिसने सहूलियत हमको दिया था। प्रोविजन एक ऐसा एक्ट जिसको अस्तित्व में लाया गया टू मेक प्रोविजंस। प्रोविजंस किस लिए? फॉर, अब यहां पे दो चीज, फॉर द फॉर्मेशन, यानी कैसे किसी चीज को बनाया जाए, और दूसरा रेगुलेशन, फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन, किस फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एलएलपी, किसी एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फॉर्मेशन और उसके रेगुलेशंस के लिए बनाया गया ये एक्ट। और किस लिए? एक तो इस एलएलपी के फॉर्मेशन के लिए और उसके रेगुलेशन के लिए, और एंड किस लिए? फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ, और ऐसे मैटर जो उससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड होंगे, कनेक्टेड देयर विथ, और ऐसे मैटर जो उससे कनेक्टेड है, और इंसिडेंटल देयर टू, जब उस पर आप काम करने जाएंगे तो उसमें किसी स्थिति या किसी समय विशेष पे वो एकाएक एराइज हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए एलएलपी एक्ट बनाया गया। तो हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ऐसा पार्टनरशिप जिसमें लायबिलिटी को लिमिट किया गया है इन टर्म ऑफ द इक्विटी एंड प्रपोर्शन, तो उसको उस एलएलपी एक्ट को फॉर्मेशन, उसके रेगुलेशंस, उससे रिलेटेड मैटर्स को कंडक्ट करने के लिए, और उसमें कोई इंसिडेंटल मैटर आते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए ये एक्ट हमारा बनाया गया। और इससे हम लोग अब इसको धीरे धीरे हम लोग कंप्लायंस के एडवांस स्टेज पे आ गए। थोड़ा सा टाइम एक्सीड कर रहा है, बट इसको समराइज कर दे रहे हैं। तो ये अभी इसमें हम लोग आगे मिलेगा। अब आने वाले FY27 में आपको कंप्लायंस के साइड से ये काफी बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। तो अब धीरे धीरे हम लोग इनफॉर्मल के बजाय फॉर्मल की ओर काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे प्रेजेंटेशन, स्लाइड, ये सब इसे भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बट विदाउट स्लाइड है तो डिस्कशन लेफ्ट राइट जाने के चांसेस रहते हैं। अपकमिंग ट्रेनिंग सेशन से सब स्लाइड पे आ जाएगा, ताकि उसमें वेरिएशन, डेविएशंस की चांसेस कम से कम हो। तो अभी धीरे धीरे हम लोग इसको अपग्रेड कर लेंगे। टिल देन वी हैव टू बी पेशेंटफुल एंड पैशनेट। आते हैं अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे। तो एसएलएच वर्जन 26 पे ये अगेन हम लोग प्रीवियस के सेशंस में डिस्कस किए हैं। इसमें फिजिकल डिजिटल दोनों आते हैं, वर्किंग अप्रोच, ये सब की टूल्स अलग अलग ये सब भी आए थे। इस पे
ये हमारे प्रीवियस सेशंस में मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे यानी आप कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस के स्टेज पे देखेंगे तो हम लोग स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस में एलएलपी एक्ट 2008 के मेजर पोर्शंस को अडॉप्ट करने जा रहे हैं। FY27 में हम लोग उसको पाते हुए, अचीव करते हुए दिखेंगे। जो कुछ बच जाएगा उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अचीव करने का प्रयास करेंगे। वैसे ही एसएलएच वर्जन 26 पे हम लोग आए हैं। ये वेयर डू वी स्टैंड में हम अपने आज के दिन कह सकते हैं कि हम लोग वर्जन 26.0 को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और लास्ट में है कि वेयर डू वी स्टैंड में अब हमने एक संडे सागा शुरू किया है, जिसमें हमने जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट बोला है उसको एग्जाम्पल्स के जरिए हम कैसे दिखा पाए, उसको लेके हमने इसमें एक स्पेशल लास्ट का पॉइंट हमने रखा। इसमें कोई एक अदर देन चीफ प्रेजेंटर्स को मौका देते हैं कि स्लाइड के जरिए अपना प्रेजेंटेशन करें। तो ये एक हमारी जर्नी का पार्ट है, इसलिए ये वेयर डू वी स्टैंड में ये भी अपने को ये जगह पाया। तो विथ ऑल दिस आई एम जस्ट यानी समराइज तो हमने कर ही दिया कि 1 पॉइंट ऐसे से करके फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में हमने 3 सेगमेंट ले गए थे। तो इस तरीके से हमारे लेवल पे जो पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है it is coming to end with a well okay हाँ with all this screen पे am I visible our CTO? Yes, sir, you are visible. uh, okay then this was these were all the points which I have digested into um, and give a kind of a blissful journey to the participants by way of sharing it in this particular training sessions. With this, I'm just giving the dash to our moderator, CRO, Madam Sikha Singh. Over to you, Madam Sikha. Thank you for the session. Now we move to the Sunday Saga show, which is a PowerPoint presentation presented by our Chief Operating CEO, COO. Am I audible? You have 15 And you minutes are to audible. present your. Okay, you have 15 minutes to present your slide and give presentation. This platform is yours. Now start. Okay, just a minute. Actually, our chief operating officer was the first one who has assisted myself in setting our dream. Then he is having a very special corner in my mental world. And instead, although he is not very tech savvy, but he has invested his effort at the very short span of notice as in the preparation of our show activities. So on behalf of him, I am just seeking a kind of um, a helpfulness from the viewers. Yes, there might be some issues in the presentation, but kindly bear him on my behalf. Okay, over to you, our chief operating officers. Over to you. And kindly keep the time limit in John. You have hardly 10 minutes. Your 5 minutes due to unavoidable reason has been cut off. Okay. Okay, and thank you for giving me this. And first of all, I'm apologize to not properly present the Sunday Saga show. I am just sharing my screen, which I have prepared. This is setting. Mr. CTO. CTO, sir.
Screen sharing. Hello. Yes, you're visible. Okay. I am just presenting my show. Randomly, I have prepared this. This is for our company, and which has been established in 2017 under proprietorship, and history of. I'm just preparing these contents. Central House Journey, ROC compliances, fiscal infrastructure, digital infrastructure, career progression chart, SMS milestone, internship program, rule of money. Just third slide. इसमें after registration of LLP, we have arranged these documents. Some of documents I have missed, but I will show you. फिजिकल प्रूडेंस का एक दिखाते हैं आपको कि तो कैलेंडर पे आते हैं हम लोग कि हमने स्टार्ट लिया कैलेंडर से स्टार्टिंग ये फर्स्ट कैलेंडर था हमारा। उसके बाद फिर इसमें दिखाया गया कि कैसे हम लोग कैलेंडर को प्रिपेयर करेंगे अपने फॉर्म के पर्पज से। इसमें मंथ नहीं रहेगा, बट ये कि मंथ वाइज क्या क्या होने चाहिए, कैसे कैसे हम लोग मीटिंग करेंगे जो भी, या किस मंथ में क्या करेंगे हम लोग, और ये मीटिंग्स के डिटेल्स है। और फिर इसको इम्प्रूव करके हम लोग नेक्स्ट कैलेंडर प्रिपेयर किया जो इस साल आया, ये इम्प्रूव वर्जन है। Sorry to interrupt. Your screen is not visible to us. Just a technical problem I have. So, yes, Mr. CEO. No worries. Share your screen again. It will solve automatically. Share again. Okay. Invisible? No, not No. yet. No. So I could not present this. Click to launch. Okay. Sorry, but I'm not properly prepared. So I will try some. Okay. Don't worry. Your screen is right now. Your screen is being shared with us, and just go to your slide page, and the number of slides which you have prepared. Just give a brief presentation on those slides, and conclude your session within 5 minutes if possible. Okay. 5 or 7 minutes. Okay. तो जैसा कि फाइनेंशियल 2023 में हमने टास्क लिया था फिजिकल प्रूडेंस का और डिसिप्लिन का, क्यूएमएस का, अभी कुछ है अंडर प्रोसेस में है। ब्रांड विजिबिलिटी का हम लोग देख ही रहे हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के उस पर, और फाइनेंशियल रिव्यू को प्रॉपर्ली चेक किया जा रहा है टाइम टू टाइम। टेक्निकल रिव्यू में भी अपने सीटीओ सर ऑलरेडी असिस्ट कर रहे हैं, और प्रोप्राइटरी कंप्लायंसेस में चल ही रहा है, कुछ अभी रह गए हैं। ब्रांचेस रोल आउट में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो जैसे ब्रांचेस में
1 2 3 4 SLS 1 2 3 4 ऐसे डेवलप किए गए हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, जैसे FY24 में कैलेंडर को हमें दिखाई दिया है, प्रोप्राइटरशिप पे 1.0 था। डिजिटाइजेशन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिसपे कि जोहो को हम लोग मतलब फुल्ली एक तरीके से अडॉप्ट किया जा रहा है, उसके जो अपने फॉर्म के पर्पज से यूज़ किए जा रहे हैं कि उसके एप्लीकेशंस को, और यूज़फुल हो रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग आगे चल के हो भी जाएंगे अच्छी तरीके से। तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी 3.0 है, कंप्लायंसेस में भी है, GST, ITR, ROC का भी इस महीने लास्ट डेट तक है ROC के कंप्लायंस में। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा 25 में डॉक्यूमेंटेशंस में है सिविल रिपोर्ट्स। देखा जाता है कि हम लोग अपने फिजिकल प्रोड्यूस को किस तरीके से अवेल कर रहे हैं, या कैसे कैसे लाइबिलिटीज लिए जा रहे हैं, या एसेट्स पे क्या कर रहे हैं, उस सब बिहाफ पे देखते हैं कि ITR पे क्या है, GST पे क्या है। एंड फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं 26। अभी तो इस पे देखेंगे नॉलेज सेंटर के पर्पज से, अगर देखा जाए तो हम लोग जैसे उस पर वर्क कर रहे हैं। इन्विटेशन के पर्पज तो है ही, और नॉलेज इंटर्नशिप प्रोग्राम चला के R&D सेंटर है ऑलरेडी। एंड यस, अभी फिलहाल के लिए बस इतने ही स्लाइड्स प्रिपेयर किए थे, और प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो माफ़ी चाहते हैं अगेन। और नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि प्रॉपर असिस्ट कर सके आप लोगों को, या शो के दौरान दिखा सके अच्छे से। तो इसी के साथ हम अपना कंक्लूड करना चाहेंगे। तो ओवर टू यू मिस शिखा। Okay. Thank you for the presentation. And now we would like to move to the question answer. Sir, can you close your slide? Okay. If someone has a question according to this session, kindly raise your hand. Okay, no problem. Let's move to the question answer from CPU. Mr. CPU, if you have any question, you may ask. Ma'am, I have no questions. Thank you. Next, HSO sir, if you have any question, you can ask. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah. I think he is not responding. No. Now move to CTO sir. If you have any question, you can ask. Yes, I have a question. Okay. I want to know the core definition of a compliance. Kindly repeat your question. Kindly repeat your question once again. What is the core definition of a compliance? Compliance. Definition of compliance. Okay. And compliance in the field of corporate governance or compliance in its wider sense. नहीं, compliance in ये legal world. Okay, ठीक, okay. I have two questions. Okay. First, what is the meaning of physical prudence? And second, ये जो ROC है, इसमें जो डेटा रिकॉर्ड किए जाते हैं, what are kinds of data? कैसे डेटा को रिकॉर्ड करते हैं? Okay, good. CO तो हाँ, और कोई क्वेश्चन ऑपरेशन चीफ की तरफ से? question about
तो ये टेक्निकलिटी जो है ये अभी हमें प्रिपेयर करने में आई संडे सागर। तो इसमें कुछ टेक्निकलिटी ऐसी थी कि जो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था सीटीएस से कि क्या अभी अच्छा पहली बात ये कि अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही कि ये प्रॉपर जैसे फ्लो में वर्क नहीं कर रहा है एप्लीकेशन। ये तो इसको problem है। इसमें दो क्वेश्चन, यानी आपके क्वेश्चन को बेटर वे में रिफ्रेश करें तो टूल्स की प्रोडक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को लेके इशू है। एम आई राइट? टूल्स की प्रोडक्टिविटी, टूल्स मतलब किसी एप्लीकेशन की प्रोडक्टिविटी को लेके इशू जा रहे हैं, और दूसरा है कि प्रोडक्टिविटी अगर समझ में आ गया तो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में वो टूल्स कैसे इफिशिएंटली उसको हम एंगेज कर सके, उस पर एक प्रॉब्लम आ रही है। यही तो, एम आई राइट? जी ओके ओके ओके, चलिए अच्छा। तो अपने क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं, एक ही साथ ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू की तरफ से, क्वेश्चन था नो क्वेश्चन। सीपीयू के लेवल पे हमने उसमें बोला था कि हमारा एचआर डिवीजन अभी ठीक है, धीरे इंप्रूव कर रहा है, चीजें इंप्रूव हो जाएगी तो ओके। देयर आर सर्टेन गवर्नेंस एंड कंप्लायंस इश्यूज दैट विल बी सॉर्ट आउट इन टाइम, विल बी सॉर्टेड आउट इन टाइम। सेकंड क्वेश्चन था एचएसओ की तरफ से, क्वेश्चन इज नो क्वेश्चन। तो एक्चुअली देयर इज ए गुड न्यूज, रिसेंटली ही हैज बीन counted amongst the fathers of the world civilization. So we, on behalf of our team members, are paying our greatest respects to the goddess who has created a kind of bulk of inspiration in our team members, that is our head support officers. तो ओके, तो उनके तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 जो था सीटीओ की तरफ से था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लायंस। तो कंप्लायंस, एक्चुअली द वर्ड कंप्लायंस सो फार in the legal domain, the word compliance has not been defined anywhere, but in legal literature you may get its meaning. Like if you go to your dictionary, then you will get what is the meaning. For example, I am just sharing an example. That is okay, compliance. Compliance means okay, actually there is technical biasness in the meaning of compliance. That's why I'm making this kind of law. Anyway, इसको आप ऐसे समझिए, कंप्लायंस को अगर कॉर्पोरेट सेंस में देखेंगे, कॉर्पोरेट कंप्लायंस, तो दो सेट ऑफ duties which are expected from particular statutory post are the person wherein a kind of function or power is invested into or vested into, or we say conferred into under any act. तो ऐसे किसी कार्य को जिसका उत्तरदायित्व किसी पे इम्पोज किया गया, किसी पे डाला गया एक्ट के द्वारा, तो एक्ट उनसे उस कार्य के परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट करती है, और जब वो उसको डिलीवर कर देते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने कंप्लायंस कर दिया। तो जो स्टैट्यूट्स उनसे एक्सपेक्ट करता था उसका उन्होंने डिस्चार्ज, उस ऑब्लिगेशन को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। तो जो कहते हैं ना कि कंप्लायंस विद इन द टाइम भी होता है, डिलेड कंप्लायंस भी होता है। तो इफ यू हैव डिस्चार्ज ऑल योर onerous duty or statutory duty having been in the four corners of the law, that means your compliance rate is good. तो compliance को in a word or in a nutshell we may say compliance means discharge of the obligation. Have you got it, our CTO? Yes. Okay. तो ये कंप्लायंस का, हम लोग इसको आरओसी के सेंस में कंप्लायंस देखते हैं। जैसे एक छोटा सा देखें यहाँ पे असल में, और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 था सीटीओ का। क्वेश्चन नंबर 4 सीपीओ के लेवल पे, सीआरओ के लेवल पे 2 है कि फिजिकल प्रूडेंस
फिजिकल प्रूडेंस क्या है, और दूसरा था आरओसी में डेटा एंट्री कैसे होती है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन नंबर 4 था सीआरओ का, और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का, जो टूल्स की प्रोडक्टिविटी और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में उसको कैसे यूज करें। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चूंकि छोटा सा हम एक काम कर दे रहे हैं यहाँ पे, जब स्लाइड प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो वहां पे एक इशू था जो वो किन्हीं कारणों से टेक्निकल इश्यूज के चलते नहीं हो पाया था, उस कमी को हम भर दे रहे हैं, पूरा कर दे रहे हैं। हैज बीन स्टॉप्ड स्क्रीन शेयरिंग, बस 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। Muted. What happened? CTO, I'm in that position to share my screen. Sir, you are visible. Your screen is being shared with us. Screen is being shared or not? Yes, yes, yes. Your screen is visible to us. Okay, okay. स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों पे? Yes, sir. ओके ओके ओके। जैसे अब इन्होंने प्रेजेंटेशन बस छोटा सा हम यहाँ पे देख रहे, जैसे इसको ऐसे देखें छोटा सा, हम आ जाएंगे फिर उस पॉइंट पे। फिजिकल प्रूडेंस यहीं पे एक वर्ड आया था जहां से इन्होंने उठाया था। अब इसमें इंट्रोडक्शन में था तो असल ये सटल हाउस की जर्नी थी यहाँ पे, इसमें जर्नी और उसी कंप्लायंसेज है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वर्ड परिचित है, कैरियर प्रोग्रेशन चार्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग के बनाए गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। वो जरिए स्लाइड आप लोगों तक आता, बट जस्ट because of the region already have been shared with you, our team was not in positions to deliver the same, because hardly he has short time to left with। तो बट हम आपको ऐसे कहते हैं कि आने वाले कल में आपको दिखने लगेगा, मिल जाएगा। तो हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैरियर प्रोग्रेशन चार्ट है, एसएलएस माइलस्टोन में हमारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, उस पर प्रॉपरली डेटा एंट्री है, उसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के हमारा लिस्ट बना हुआ है, उसमें हमारे जो क्वार्टरली मैनर में जो इंटर्नशिप हम प्लान किए हैं मॉड्यूल्स उसके लिए डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि ये हम लोग का पेड वर्जन है तो इसमें 3-3 महीने के 4 क्वार्टर हैं, और ये सीपीओ डिवीजन ये एचआर डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करता है इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो उसमें 3-3 महीने के 4 क्वार्टर है, और हर क्वार्टर का एक वो है मॉड्यूल्स है। तो उसमें लीगल स्टडी है, डिजाइन है, उसके बाद फिर केस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बाद फिर एडवांस रिसर्च है। तो ये 4 मॉड्यूल्स है, 3-3 महीने के हैं। तो ये देखिए हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसके भी डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट होनी चाहिए स्लाइड के साथ। तो बट यहाँ पे जो डिफिसिट रह गई है इसको हम लोग आगे पूरा कर लेंगे। रूल ऑफ मनी का डॉक्यूमेंट्स है, इसकी हार्ड कॉपी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सब चीजें, बट उसकी सॉफ्ट कॉपी थी यहाँ पे शेयर हो सकती थी, नहीं हुई है। अब इसको देखिए हम लोग के पास इतनी चीजें थी जो यहाँ पे कंप्लायंस रिजीम में दिखाने थे, यानी बहुत कुछ है दिखाने के लिए बट नहीं हो पाया था। तो इसको हम लोग रखेंगे एक लेसन के तौर पे, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना हो। आते हैं जैसे इसमें छोटा सा हम देखें कि हेड्स थे, इसे FY23 में देखिए जर्नी जब स्टार्ट किए थे तो हम अपने उनकी बिहाफ पे थोड़ा सा प्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो एक्सीड कर रहा है टाइम लिमिट, बट एनीवे हम इसको कंक्लूड कर दे रहे हैं कि फिजिकल प्रूडेंस में होता है कि जो हमारी मौद्रिक मतलब मुद्रा से रिलेटेड, मतलब कैश से रिलेटेड हमारा जो डिसिप्लिन है वो कैसा है। तो प्रूडेंट मैन, प्रूडेंस एक होता है ना कि एक समझदार आदमी, तो हमारी जो मौद्रिक समझ है वो कैसा है, इसको फिस्कल प्रूडेंस बोलते हैं। फिजिकल नहीं, फिस्कल माने मौद्रिक, मनी रिलेटेड जो हमारी कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग है, मनी से रिलेटेड जो हमारी समझ है, तो ये आता है इसमें। और ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन में है ब्रांड विजिबिलिटी, ये हम लोग FY23 में इसको स्टार्ट किए थे। इस पे फिजिकल प्रूडेंस में हमने क्या किया था, पूरे अपना क्वार्टरली हमने डेटा मैनेज किया था, QMS स्टार्ट किया था, उसको बन गया था पहले का, बट उसको हम लोग अपने रूटीन्स में लेने लगे थे। ब्रांड विजिबिलिटी पे काम किया गया था, FY23 में हम लोगों ने काम किए थे। चूंकि जर्नी है इसलिए हम बताना जरूरी है ROC कंप्लायंस में, इसलिए हम बता रहे हैं। फाइनेंशियल रिव्यू में हम लोगों ने क्वार्टरली अपने ग्रोथ चार्ट को मेंटेन करने लगे थे, उस पे आपको पूरे 17 से लेके अब तक का जो हमारे जो रेवेन्यूज है, आउटवर्ड सप्लाई हमारी कैसे इनहेंस हुई है, ये सारे डेटा हम लोग के पास है।
ये आप लोग को भी मिल जाएगा, ये हमारे सिस्टम के फॉर्म के वेबसाइट पे, ये पब्लिक डोमेन में इसको हम रख के चलेंगे, डोंट वरी। और उसके बाद ढेर सारे डेटा वहां पर हम लोग दिखा देंगे, क्योंकि और एक टेक्निकल रिव्यूज में हम लोग टेक्नोलॉजी पे भी लगातार अपने ट्रेनिंग सेशंस के जरिए अपने रिव्यू करते गए हैं। ये FY23 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अब प्रोप्राइटरी कंप्लायंसेस, चूंकि उसमें प्रोप्राइटरी कंप्लायंसेस हम लोग कर रहे थे, प्रोप्राइटरशिप के नेचर पे थी। फिर इसी साल के मिड में जाके हम लोगों ने उसको LLP पे फिर स्विच किया था। और ब्रांचेस रोल आउट में 2 ही ब्रांच थे हमारे पास, SLS 01, SLS 02। ये 23 में था। वैसे जब FY24 में हम लोग आते हैं तो वहां पे देखिए क्या क्या चीज नया हुआ। प्रोप्राइटरशिप SLH 1.0 हम लोग का इम्प्लीमेंट हो चुका था पिछली साल। डिजिटाइजेशन SLH 2.0 हम लोग इम्प्लीमेंट करने लगे थे। कुछ चीजें हम लोग के पास इसमें यूट्यूब वगैरह आए थे, लिंक्डइन पे हम लोग 5000 के ऊपर गए थे, और हमारे कुटुंब पे हम लोगों ने 350 के ऊपर के बेंचमार्क अचीव किया था, ऐसे करके। और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी देखिए, यहीं पे हम लोगों ने LLP FY24 में हमने LLP का हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी हम लोग को मिली थी। ये हमारा ग्रोथ बताता है, जर्नी कैसी रही। फिर कंप्लायंसेस पे हम लोगों ने काम करने लगे, डायरेक्टर का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो ITR GST लगातार हम लोग कंप्लायंस करते जा रहे हैं, तो ये हम लोग करते हैं। उसके बाद FY25 में देखिए क्या हम लोगों ने नया इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोगों ने कैलेंडर कंटिन्यू चल रहा था, डॉक्यूमेंटेशन कंटिन्यू था, सिविल रिपोर्ट का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया, और धीरे 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 इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले कल में इसको बेहतर करने के लिए प्रयासरत हैं। लाइबिलिटीज को हम लोगों ने एक हाईलाइट किया कि हमारे पे रनिंग लाइबिलिटीज कितनी है हमारे अदर ब्रांचेस पे, कैसे इस लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग हम डिसीजंस कैसे सुनिश्चित करें, तो ये भी हम लोगों ने इसमें प्लेस इन किया। कंप्लायंसेस को अगेन हम लोगों ने जो भी स्टेचुटरी कंप्लायंसेस है उसको हम लोग लगातार अपडेट करते जा रहे हैं। GST कंटिन्यूअस है, ITR कंटिन्यूअस है, ROC कंटिन्यूअस है। तो ये हमारे FY25 को हम लोगों ने ऐसे फुलफिल किया। FY26 में आप देखेंगे, इसके साथ हमने डेट भी शो किया था, बट यहाँ पे नहीं दिखा पाए हैं, अदरवाइज आपको प्रॉपरली डेट वाइज मिल जाता आपको कि ये चीजें कब कब हम लोगों ने किया है, बट ये सब चीजें हो जाएगी धीरे धीरे। FY26 में देखिए हमने क्या किया, जो भी चल रहा है, तो इसमें हमने सबसे एडवांस अपग्रेडेशन किया था इसमें, कि देखिए कैलेंडर तो हमारा कंटिन्यू, डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट वर्जन नेक्स्ट लेवल पे आया, इसमें CTO ने काफी असिस्ट किया है, CPO भी अपने लेवल पे प्रयासरत है, CRO ने प्रेजेंटेशन के लेवल पे बढ़िया काम किया है, डिजिटल डॉक्यूमेंट जनरेट करने में बहुत हेल्प मिली है। सिविल रिपोर्ट हम अगेन इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो लाइबिलिटीज को देख रहे हैं, चूंकि कैपेक्सिंग करने में लाइबिलिटीज थोड़ी सी बढ़ी है, तो उसको हम लोग हैंडल कर रहे हैं कि ताकि उसको डीलेवरेज कर सके। नॉलेज सेंटर के तौर पे SLH 01 नॉलेज सेंटर, R&D सेंटर यहाँ पे गया, बैक ऑफिस यहाँ पे हो गया। R&D सेंटर अभी SLH 04 जो कि लखनऊ से हम लोग प्लान कर रहे हैं ऑपरेट करने का, और इसमें लॉजिस्टिक पे कुछ कैपेक्सिंग हुई थी, इन्वेस्ट किया गया था। ये सारे के सारे लॉजिस्टिक फर्म को ही डिलीवर हो जाएंगे मैन पावर के लेवल पे, आगे जब हम लोग इसको 15 तक स्केल करेंगे। तो हम लोगों ने कुछ ऑफिसेस में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कुछ कंप्लायंसेस कुछ उसमें कैपेक्सिंग किए थे, उसके बारे में था। फिर हमारे कैश रिजर्व्स वगैरह कैसे हैं उस पे था, उस पे हम लोग, तो ये सब चीजें हम लोग FY26 में हम लोग कर रहे हैं। बाकी इसमें कंप्लायंस ये सब सीट पे आती, बट हमने कहा कि ये इशू है इसलिए नहीं हो पाया। तो ये कुछ कारण थे जिसके चलते, और भी इफेक्टिव ROC कंप्लायंस का ये फर्स्ट मीटिंग है, ये आने वाले साल, एक साल में एक बार होता है, तो इसमें हम एक नेक्स्ट लेवल का वो एक्सपेक्ट करते हैं, नेक्स्ट लेवल का और डेडिकेशन। स्क्रीन पे हम दिख रहे हैं सर। ओके। तो ये थोड़ा सा वहां पे था जो हमने उनके बिहाफ पे प्रेजेंट किया, बट अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, ROC compliance is the biggest festival of any firm. So this kind of training session, we would be ready to give our best at the time of presentation, and time limit shall be expanded up to 2 hours in the next session, in the upcoming ROC compliance of the FY27. तो अभी वो अगले साल के लिए इसको करेंगे। आते हैं, 2 क्वेश्चन बच गया है, जो इसमें CRO का क्वेश्चन था, फिजिकल प्रूडेंस क्या है हमने बता दिया। पैसे के मनी यानी वैल्यू, मनी को लेके जो डिसिप्लिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एक ऑर्डिनरी मैन ऑफ प्रूडेंस के तौर पे, उसको फिजिकल प्रूडेंस में रखा जाता है। गवर्नमेंट का फिजिकल प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है कि महंगाई का
जो 4 से 6% करती है कि देश का हमारा घाटा, बजटी घाटा इतने से इतने % के बीच रहे, तो फिस्कल प्रूडेंस आगे मिलेगा भी। अब इस पे डिटेलिंग अकाउंटिंग के टर्म में भी हम बताएंगे, अकाउंटिंग का ही टर्म है। आरओसी में डेटा कैसे फीड होते हैं, अभी आरओसी कंप्लायंसेस में जैसे जो इक्विटी पार्टनर होते हैं उनको पता होता है, जो इसलिए इक्विटी पार्टनर होना एक अलग नेक्स्ट लेवल का एक रिस्पांसिबिलिटी है, और उसमें एक आप लर्निंग अपॉर्चुनिटी वहां पे है। उनको पता होता है कि आरओसी पे किस तरीके के डेटा वहां पे फीड होते हैं। बाकी के डेटा आपके फर्म के इंटरनल्स के लिए होता है, मगर कुछ डेटा जो एमसीए पोर्टल पे जाता है, तो ये जो इक्विटी ओनर होते हैं या जो मैनेजरियल बोर्ड में होते हैं उनको पता होता है, तो वो सब चीजों को पब्लिकली आदमी डिस्क्लोज नहीं करता। तो एनीवे वो धीरे धीरे अगर कल को आप लोग अपने कैरियर प्रोग्रेशन चार्ट को फुलफिल करते हैं, इक्विटी मेंबरशिप में आते हैं, तो वहां पे से मौका मिलेगा। तो वहां पे जो नेचर एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द डेटा आर which used to be just feeded into ROC पोर्टल, वो वहां पे मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बच गया था हमारे चीफ ऑपरेशन ऑफिसर का, ऑपरेटिंग ऑफिसर का, तो उसमें था कि जो टूल्स था, चूंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने स्लाइड को इस पे लिया था, तो पहले किसी और पे देते, इनको जो टूल्स जो होते हैं वो प्रोडक्टिविटी इनहेंस करने के लिए होते हैं। और हमारे किसी भी प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट टूल्स, तो एक होता है टूल्स की इनहेरेंट वीकनेस और एक होता है टूल्स के एडॉप्शन की वीकनेस। और ये दोनों होता है कि हमें टूल्स में कोई वीकनेस नहीं है, उसके एडॉप्शन में कोई वीकनेस नहीं है, मगर प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में वीकनेस आ रही है। तो उनके दो क्वेश्चन था टूल्स की प्रोडक्टिविटी, हालांकि वो प्रॉब्लम ऑपरेशन चीफ का लेवल पे है, टेक्नोलॉजी के लेवल पे काफी स्मार्ट है एप्लीकेशंस। हम ये डिपेंड करता है कि हमारी आदत किस पे है। तो अगर हमने कभी गूगल के प्रोडक्ट पे काम किया तो उस पर स्विच करने में दिक्कत आएगी, मगर वर्ल्ड सिनेरियो जो चल रहा है हमें पता था कुछ ऐसा होगा, इसलिए हमने चीजों को पहले ही से इसको अपना इधर किया कि अब चाहे उन लोगों का सर्वर वहां पे उड़ाए, कुछ भी करे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा काम चलेगा। अमेजॉन सर्वर AWS को मिडिल ईस्ट से उड़ा दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट का इजराइल में उड़ा दिया गया, उनको दिक्कत आएगी, हमें थोड़ा दिक्कत आएगी, हमारा डेटा यही का यही से डिलीवर हो जाती है। तो ये सब चीजें हमें एक जैसे एंटीसिपेट किया था, तो हमें इस सबको प्रोडक्टिविटी टूल्स को और टाइम दें, उसके लैंग्वेज को उसको समझे, दिक्कत आएगा तो वहां पे टिकट जनरेट करिए, सीटीओ आपकी हेल्प के लिए तैयार है। सीटीओ के लेवल पे दिक्कत आएगा तो वहां के सेल्समैन से, वहां के सपोर्ट टेक्निकल चीफ से बात करेंगे, और वो भी नहीं होता तो बतौर चीफ हम खुद भी वहां के चीफ से बात करेंगे। और अगर इतने के बावजूद कंप्लायंस नहीं होता तो कीप इन माइंड वी आर द एडवोकेट, किसी भी हद तक जाके हम उसको कंप्लायंस करा सकते हैं। एनीवे, तो प्रोडक्टिविटी टूल्स के लेवल, टूल्स की प्रोडक्टिविटी के लेवल पे इशू नहीं है सो फार। I know about this particular applications, and keep in mind previously our 3 members have given their presentation through the same applications, and I have gone through the QCC and came to know about that. Yes, this tools is very effective. So it's a kind of subjective opinion. My answer to this question would be go and give sufficient time to each and every tools. With the help of YouTube tutorials, you will get proper assistance even from those sources. And दूसरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस को लेके अगर एब्रप्शनल इंसिडेंटल कोई इश्यूज होते हैं तो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में दिक्कत आती है। इसलिए कहा जाता है कि इफिशियंसी अच्छी रहेगी तो वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में भी आप किसी भी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने की स्थिति में रहोगे। दिक्कत क्या है कि सारे एसेट्स का ऑप्टिमाइजेशन करना है, जैसे हमारे लेटर बने, वीडियोस बने, ये तो इसका सर्कुलेशन कैसे है, हमें पता चल जाता है हमारे डिवाइस सेटअप से कि इसका सर्कुलेशन का ये पुअर कंडीशन, कंप्लायंस नहीं है। तो जब तक हम अपने एसेट्स को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तब तक हम उसके प्रति अपने को सिंक नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब चीजें हैं, और आने वाले कल में ध्यान देंगे कि अब धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही है, मैन पावर के ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे, तो अंडर परफॉर्मेंस को हम लोग धीरे धीरे अवॉइड करते जाएंगे। जैसे मैन पावर के हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, पर्सन हु इज अंडर परफॉर्मिंग और इज नॉट इन पोजीशन टू परफॉर्म satisfactorily will not be provided sufficient opportunity to learn from that particular platform, or maybe for the time being he would be
a kind of he would be provided or assigned with task of least degree of difficulty, जैसा भी हो सकता है। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी है, इसको जितना ही सीखने में लगाएंगे उतना ही आदमी अपस्किल होगा। और अभी जो चल रहा है देख ही रहे हैं, एजेंटिक एआई क्लॉड का इरा है, अकाउंटिंग, एडवोकेट और डॉक्टर के लिए बहुत ही हार्डशिप आने वाली है, तो इसलिए इसको भी हम लोग को हैंडल करना है। विथ ऑल दिस ट्रेनिंग हम लोग आधे घंटे एक्सीड करते हैं, और उसी का सेशन था, फिर भी ठीक है, 1.5 घंटे का सेशन गया। तो इस पे चूंकि फीडबैक के तौर पे सनी, अगर आपको आवाज, हमारे जो हेड सपोर्ट ऑफिसर है, अगर आपको आवाज आ रही है तो अपने को अनम्यूट करके बस 1 मिनट में अपने फीडबैक आप सुनिश्चित करें। ओके ओके, सीटीओ के लेवल पे हाँ हैंड रेज है, तो फीडबैक को सीटीओ आप अपने लेवल पे समराइज करें, बेटर होगा। ओके, वेरी गुड, ओवर टू यू सीटीओ, विद इन 1 मिनट काइंडली गिव योर फीडबैक। एंड सर फीडबैक में मेरा ये है, ये मीटिंग का जो टाइम है, क्या इसको हम 1 घंटे से 1.5 घंटे कर सकते हैं, मतलब 12:30 to 14, बिकॉज जनरली अक्सर 14 ही टाइम हो जाता है। तो आई थिंक हमें प्रिसाइज होना चाहिए अपने इनविटेशन लेटर पर टाइमिंग डालते वक्त। ओके, एक हो गया, और फीडबैक? एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपना एक बार वीडियो ऑन कर लें ताकि एक स्क्रीनशॉट लिया जा सके। तो कुछ लोग किसी और प्लेटफॉर्म पे होंगे, तो ऐसे 2-3-4 एज मच एज पॉसिबल करके ले लीजिए। ठीक है, अच्छा ये प्रेजेंटेशन में, हाँ तो बाकी लोग तो किसी और सेगमेंट में होंगे। ठीक है, तबीयत ठीक है सीपीओ? ओके, डन सीटीओ? यस सर, यस सर। ओके, विथ ऑल दिस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. यू